जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾਣ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਚਲਾ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਸੋਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਟਵਾਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੁਭਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਘਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹੀ ਜਦ ਆਪਾਂ
गुरु जी कहते ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਜੇ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਰਬ ਖਰਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਆ ਹਰ ਪਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ पल सुनते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है और गुरु पिताजी कहते हैं कि संडे की छुट्टी होती है बट शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती और संगत जी होनी भी नहीं चाहिए। शुक्राना तो हमें दिन रात उस परमात्मा का करना चाहिए, उस अन्नदाता का करना चाहिए जिसने हमें सब कुछ दिया है, रहने को घर दिया है, खाने को रोटी दी है, सुंदर संसार दिया है, सुंदर परिवार दिया है, स्वस्थ शरीर दिए हैं और जो भी हमारे संकट हैं वो सब दूर करते हैं। हमेशा आभास दिलाते हैं कि वो हमारे अंग संग हमारे साथ हैं। हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, किसी भी भटकन से फटाफट से निकाल देते हैं। हम अगर रोते हैं ना संगत जी तो हमारे हर एक आंसू खुद आकर स्वयं पोंछते। ऐसे हैं हमारे परमात्मा, हमारे गुरु जी महाराज। संगत जी उनका शुक्राना करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं रहता, क्योंकि हमेशा परमात्मा उनके साथ रहता है, उनके अंग संग रहता है। और वैसे भी जो शुक्राना करना सीख गया ना उसकी ज़िंदगी तो अपने आप सुंदर हो जाती है। संगत जी मालिक का शुक्राना, मालिक को प्रेम से ही पाया जा सकता है और प्रेम का सबसे सीधा स्रोत है शुक्राना। जब आप शुक्राना करते तो आपको झुकना आता है, विनम्रता आती है आप में, और विनम्रता आती है तो प्रेम अपने आप आ जाता है। संगत जी तो शुक्राना हमें दिन रात करना चाहिए, हर समय अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना ही वो कड़ी है जो आपको परमात्मा के करीब ले जाती है, आपको उनसे जोड़ती है। और शुक्राना ही वो औषधि है जो आपके संकटों में, आपके जख्मों में आपके काम आती है। संगत जी जब संकट गहराए, जख्म गहराए, बोझ सताए, जिंदगी डराए, जिंदगी अंधेरों से भर जाए तो गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्राने का दामन थाम ले, वो धीरे धीरे तेरे जिंदगी के सभी अंधेरे को, सभी संकटों को टाल देगा। शुक्राने में बहुत शक्ति होती है। संगत जी आप शुक्राना करके तो देखें, गुरु पिताजी कहते हैं बड़े से बड़ा संकट तेरी एक शुक्राने की ताकत से कट जाता है, टल जाता है। यहाँ तक कि संगत जी कि अगर आपकी ज़िंदगी मौत में भी बदलने वाली है ना, अगर आपके शुक्राने में ताकत है और आपने सद्दत से, सच्ची इच्छा से, सच्ची स्वेच्छा से, दिल से मालिक का शुक्राना किया है ना, मालिक स्वयं आके उस मौत के सामने खड़ा हो जाता है। संगत जी और आपको कुछ नहीं होने देते, आपको सुरक्षित रखते हैं। इसलिए शुक्राना करें। गुरु पिताजी कहते हैं अभी तुम शुक्राने की पावर को जानते नहीं हो, इसलिए शुक्राना करें, अपने मालिक का दिन रात शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें। शुक्राना करने से ही आपके संकट कटते हैं, शुक्राना करने से ही मालिक को आपकी परिस्थितियों का हवाला मिलता है। इसलिए शुक्राना जरूर करें
और संगत जी संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है उसके जीवन में उजाला ही उजाला आता है। महालक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, गुरु जी महाराज की अगाध कृपा मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी मेरे गुरु पिताजी का मैसेज आया। मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी जिंदगी की डोर अब मेरे हाथ में है, तुझे कभी किसी के सामने झुकने या हारने नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जब मेरे पिता मेरे साथ है तो मैं कैसे भला गिर सकती हूँ, कैसे हार सकती हूँ। मुझे पता है मेरा संभालने वाला तो हर पल मेरे साथ है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, वो अपने बच्चों को कभी कहीं झुकने नहीं देते, कभी कहीं रुकने नहीं देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तू हाथ रोक कर खर्चा मत किया कर, दिल खोल कर खर्चा किया कर। तुझे तो मैंने करोड़ों का मालिक बनाना है, और एक और तो तेरा जल्दी से नया घर बनने वाला है जो तेरा खुद का होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। लेकिन बाबा वो घर तो आपका होगा और आपके बच्चे आपके साथ उसमें रहेंगे। हमारे घर के बड़े हमारे पिता तो आप ही हो ना बाबा, और बड़ा बच्चे अपने पिता के बगैर कैसे रह लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी मैं जानता हूँ तुझे किसी ने नहीं समझा, रो मत, सबका हिसाब होगा। तेरे ऊपर लगे हर इल्जाम मिटेंगे, तेरी इज्जत लौटेगी। जो तुझे रुलाते थे वही जल्द तुझसे माफी मांगेंगे। माफ कर देना, पर उन पर दोबारा कभी भरोसा मत करना। पुत्र जिसने तुझे छोड़ा था ना, तेरा गुरु, उनके सामने तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाकर खड़ा करेगा। ये तेरे गुरु जी का वचन है। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, जो तुझे मिला है जल्दी से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बिटिया को एक बार फिर से खुशी से जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतना चमत्कार होगा। मेरे बाबा आकर मुझे थाम लेंगे और सब कुछ फिर से सही लगने लगेगा, सब कुछ सही होने लगेगा। मैं तो ज़िंदगी हार बैठी थी, ज़िंदगी तो मेरी उसी जगह ख़त्म हो गई थी। संगत जी मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि बस ज़िंदगी यही है, ऐसे ही खिचड़ खिचड़ के जीना और ऐसे ही मर जाना, कभी भी अच्छे की उम्मीद ना करना। क्योंकि संगत जी कराने वालों ने इस कदर कराया, इस कदर परेशान किया कि पूछो ही नहीं। और अभी तक भी संगत जी उनका प्रयास जारी है, उनका प्रयास खत्म नहीं है। लेकिन अब तो हमारे रक्षक हमारे गुरु पिताजी हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हम लोगों को संकटों से बचाते हैं संगत जी। वरना कसर तो उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ रखी। खैर उन्हें तो बाबा जी देख लेंगे, वो जो कर रहे हैं उनकी उनकी करने का फल अपने आप मेरे गुरु पिताजी दे देंगे। मैं किसी के लिए बुरा नहीं मानती, बट मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा जी मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना कभी बुरा करने का सोचा है। आप अपनी बच्ची को अपने आप से ज़्यादा कोई अच्छी तरह नहीं जानता, तो आपको जो सही लगे उसके लिए जो न्याय हो अपनी बच्ची के लिए वही करना आप। बस मैं तो आपसे न्याय मांगती हूँ बाबा। मैंने कुछ नहीं गलत किया तो भी मुझे भुगतना पड़ा, लेकिन बाबा जी जो कर रहे हैं उनका क्या, बस उनके लिए मैं न्याय आपसे मांगती हूँ बाबा जी। एक सत्संग और है कि मेरी मम्मी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी यहाँ से दिल्ली से गई थी तो संगत जी बेटी की शादी में आई थी। जब उस समय तबीयत ख़राब थी तो मेरे को ना मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगता था। अभी थोड़े दिन पहले गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया है, चिंता मत कर, उसकी हेल्थ मैंने ब्लेस कर दी है, कुछ नहीं होने देना उन्हों। तो संगत जी अभी मैंने कल मम्मी से बात करी, मम्मी की तबीयत अब ठीक है। मैंने पूछा मम्मी तबीयत कैसी है, मम्मी कहने लगी मेरी तबीयत ठीक है अब, क्योंकि गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि तू चिंता ना कर, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तुझे मेरी ब्लेसिंग मिल गई है और अब तुझे कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने भी यही मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी जी गुरु पिताजी ने कहा था कि मैंने तेरी माँ को ब्लेस किया, कुछ नहीं होने देना उन्हों। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मम्मी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए। संगत जी इस टाइम सर्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा ही सर्दी है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो बुज़ुर्गों के लिए क्या संगत जी, सर्दी से सबको है। मेरे को इतनी ठंड लग रही है कि मेरे को दवा लेने जाना है डॉक्टर की दुकान पर, मैं जा नहीं रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। और बेटा मेरा गुस्सा होता है 3 दिनों से, पर मेरा बाहर निकलने को बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि संगत जी ठंड की वजह से ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मेरा रात को बीपी बढ़ जाता है, और बीपी बढ़ता है तो ठंडापे से बाहर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है, मुझे हाथ पैर सब ठंडे पड़ जाते हैं। इसी वजह से संगत जी मेरी हिम्मत नहीं होती ठंड में बाहर जाने की। और वही हाल मम्मी का भी है कि मम्मी हीटर के सामने बैठी रहती हैं और मतलब सारा दिन अपने घर में ही रहती हैं,
काम भी करती हैं थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गुरु पिताजी की कृपा से उनकी तबीयत अभी सही है। बाबा जी बस ऐसी मेहर बना के रखे उन पर। संगत जी, माँ तो माँ होती है, माँ कैसी भी हो, अपने बच्चों को माँ बहुत प्यारी होती है। मुझे भी अपनी माँ बहुत प्यारी है, जैसे ये भी है। बाबा जी उन पर अपनी कृपा बना के रखें। माता पिता तो संगत जी कुछ भी ना करें, यदि बैठे भी हैं ना अपने बच्चों के लिए, तो वो भी भगवान का सबसे बड़ी कृपा है, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और बच्चों की बहुत बड़ी हिम्मत होती है कि हाँ भी हमारी माँ है, सुकून ही काफ़ी है संगत जी। अपने बाबा जी से यही विनती करती हूँ कि बाबा जी मेहर बना के रखें, और भाई पर भी मेहर बना के रखें। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो मानता नहीं है संगत जी, ड्रिंक बहुत करता है और उसकी बहुत ज़्यादा हालत इस समय ख़राब है। गुरु पिताजी बस आपके हवाले है उसकी घर गृहस्थी, आप ही देखना बाबा जी, आप ही उसको इस नशे से मुक्त कराओ, उसको जीवन दान दो बाबा। यही विनती करती हूँ आपसे, यही प्रार्थना करती हूँ। उधर मेरी वो कजन सिस्टर जिसके घर की हालत बहुत ख़राब है, और उसकी भी हालत बहुत ख़राब है इस समय। गुरु पिताजी बस उसकी कृपा करो, उस पर कृपा करो, उसकी भी रक्षा करो बाबा। सबकी रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे मालिक, उन सब की रक्षा करो बाबा। बहुत ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की, उन सभी को बहुत ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की। उन पर अपनी कृपा भरा हाथ रखो बाबा, मेहर बनाए रखो अपनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि अगर तूने आज मेरा शुक्राना किया तो तेरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मेरी। बाबा जी, अभी तक आप ही ने तो संभाल रखा है, वरना हमारी औकात क्या कि हम कुछ संभाल पाते। हमने जब भी संगत जी कुछ संभालने की कोशिश करी, और जब भी मैंने ये नोटिस किया, ये मैं किसी के नहीं संगत जी, खुद से सीखती हूँ। कहीं पे भी मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो मैं ज़रूर उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। और कहीं से भी किसी के परिवार से कुछ भी बुरा देखने को मिलता है संगत जी, तो उससे भी सबक लेती हूँ संगत जी। और इंसान का काम ही है कि इंसान हो अगर, तो कहीं से भी कुछ सीख मिले अच्छी तो उसे स्वीकार करो, कुछ सबक मिले तो उससे भी सीखो। संगत जी, जब भी मैंने ये संभालने की कोशिश करी कि ये काम मैंने किया, मैं इसको संभाल लूँगी, मैं इसको संभाल लूँगी। मैंने अपनी मम्मी को भी देखा, मेरी मम्मी भी हमेशा यही कहती रही कि मैं भैयों को सुधार दूँगी, मैं इनको समझा दूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी। लेकिन संगत जी, उसने ड्रिंक नहीं छोड़ी तो 8 दिन तक नहीं छोड़ी। मम्मी मैं करती रही। लेकिन जब मुझे ये बात समझ में आई कि मैं नहीं, मालिक करो, तभी मैं मम्मी से अपने कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं करो, मालिक करो। जब आप मालिक करोगे तो मालिक संभाल सकता है। हमारी कोई औकात नहीं कि हम किसी चीज़ को, हम जितना भी संभालेंगे किसी चीज़ को, वो उतना ही बिगड़ेगी, उसका बिगड़ा हुआ रूप हमारे सामने आता है। लेकिन जब हम सरेंडर कर देते हैं, हम सब छोड़ देते हैं अपने दाता के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, तो संगत जी फिर हम नहीं चलते, फिर हमारा मालिक चलता है। और जब वो चलता है ना संगत जी, तो उनसे अच्छा भला कौन कर सकता है, उनसे अच्छा भला अपने बच्चों का कौन चाह सकता है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे बाबा ने सब कुछ संभाल रखा है, सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा है। शायद इतना अच्छा मैं नहीं संभाल सकती। और अभी संगत जी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते घर में बाबा जी, सब कुछ खुद ही संभाले। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, पता है कल क्या हुआ रात को, मेरी बेटी आई हुई है, तो उसने कहा कि मूंग दाल का हलवा बनाना उसे बहुत पसंद है संगत जी, बड़ी वाली जिसकी शादी हुई है। तो मैंने मूंग दाल का हलवा उसके लिए बनाया। तो संगत जी, बनाते बनाते ना 11 बजे मैंने स्टार्ट किया था, 11:30 बजे करीब, तो मतलब 10 बज गए, 10 वो सॉरी संगत जी, 1:30 बज गया बनाते बनाते हलवा मूंग दाल का। ज़्यादा बनाया था संगत जी थोड़ा। तो क्या हुआ, फिर मैंने कहा 1 गिलास दूध दे दे नैना से, मतलब अपनी छोटी बेटी से। तो संगत जी उसने दूध के लिए भगोना उठाया, तो दूध का पूरा बर्तन संगत जी, 3 किलो दूध था, पूरा का पूरा उसके हाथ से ऐसे गिरा और पूरा नाली में चला गया दूध। मैंने कहा हे गुरु पिताजी, ये क्या हुआ। फिर संगत जी मैंने उसको डांटा तो फिर मैंने सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ उसके कोई कर्म होंगे जो गुरु पिताजी ने उसके कटवाए होंगे, अब उसको डांटने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर संगत जी मैं अपने आप को शांत कर गई, मैंने कहा कोई बात नहीं। और संगत जी बिल्कुल भी ये समझो पूरा का पूरा 3 किलो दूध नाली में चला गया, मलाई सहित। ज़रूर संगत जी कोई ना कोई कुछ होगा, उसका कर्म कुछ कटना होगा। सो गुरु पिताजी ने उसको कटवाया। और शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी कभी कभी क्या होता है, हमें ये लगता है कि ये चीज़ बहुत ख़राब हुई है हमारे साथ, ये चीज़ अच्छी नहीं है। वो संगत जी होता है, हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमें अच्छा नहीं लगता। पर जब बाद में उसका तथ्य निकल के आता है ना सामने, जब उसमें से धुंध हटती है, तो ये लगता है कि भगवान ने तब जो किया वो बहुत अच्छा किया, अच्छे के लिए किया। इसलिए शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर का। क्योंकि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, और शायद उसी में हमारी भलाई छुपी होती है।
अब इसी के साथ अपने गुरु पिताजी से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए, महालक्ष्मी जी की कृपा आगाध बनी रहे सब पर। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, उन्हें औदा दिलवाए, समाज में उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता सदैव बनी रहे, खुशियां बढ़ती ही चली जाए सभी घरों में। आपकी कृपा हम सब संगत पर समान बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ में अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। गुरु जी दादा हर वक्त ही शुक्राना करते हैं। गुरु जी के नाम से ही जीती हूँ, गुरु जी की ताकत से ही खड़ी हूँ, गुरु जी की शक्ति से ही आगे बढ़ रही हूँ। गुरु जी हैं हमारे साथ हर पल हर क्षण। बस इसी आस से, इसी भरोसे आगे चल रही हूँ, बढ़ रही हूँ। सब अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा जब गुरु जी हमारे साथ हैं। गुरु जी हर वक्त तो हमारे साथ हैं। जो कोई समस्या होती है हाल निवारण कर देते हैं। गुरु जी का जाप करो, मंत्र करो, गुरु जी को याद रखो, बस सारे काम अपने आप ही होते चले जाते हैं। गुरु जी बच्चों की रक्षा हर पल करते हैं। कोई भी संकट आता है गुरु जी हमेशा करते हैं मदद बच्चों की। कभी कहते हैं तेरे बच्चों पे संकट है, वो अपने आप दूर हो ही जाता है जब अपन गुरु जी से कहते हैं सब तो आपके हवाले है, सब आपके चरणों में छोड़ा हुआ है, सब आपको करना है, मुझे किस बात की फिक्र। गुरु जी कहते हैं आज तेरे बच्चों का एक्सीडेंट होगा, ये होगा, वो भी होता है, बहुत छोटे में कटवा देते हैं गुरु जी। तब अपन पहले तो ध्यान नहीं देते, पर जब पता चलता है तब लगता है हाँ गुरु जी सही कह रहे थे। फिर लगता है गुरु जी शुक्राना, शुक्राना, बच्चों की बचाने का शुक्राना, बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना। कोई भी संकट होता है सब सही होता है, जो भी मैसेज आता है अपने को। हम लोग ये जो इग्नोर मार देते हैं, कोई नहीं कल सुन लेंगे, आज सुन लेंगे, पर जो आज का आज ही सुन ले, जितना हो सके सुनते ही हैं। पर जो रह जाते हैं फिर भी वो सब मेरा कुछ रह ही जाता है। इतने सत्संग आते हैं, सुबह से शाम तक सुनती हूँ, कुछ रह भी जाते हैं। अब रात को तो फिर गुरु जी के हवाले ही करके सो जाती हूँ। अब गुरु जी इतना हो गया, अब आपके हवाले सब परिवार, अब आपको ही देखना है। वैसे तो गुरु जी कोई संकट आने ही नहीं देते, इतनी बेफिक्र हो जाती हूँ। कुछ भी बोलते हैं गुरु जी, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मेरा तो एक ही वाक्य होता है जब आप हो गुरु जी तो मुझे किस बात की फिक्र। सब तो आपको देखना, सब आपको करना है। यहाँ तक बोलती हूँ गुरु जी आप मेरे घर के बड़े हो, जो करना है आपको करना है, जो कराना है आपको कराना है, जो बोलना है आपने बोलना है, जो सुनाना है आपने सुनाना है। बस मैं तो आपके चरणों में बैठी हूँ गुरु जी। अब आप देखो, मेरे को तो आशीर्वाद देते जाओ और आगे बढ़ती जाऊँगी। मुझे कुछ नहीं आता गुरु जी, गलतियाँ भी करती हूँ, सब करती हूँ, वो तो होती हैं गलतियाँ, तो हमसे गलतियाँ ही होती हैं, हमसे अच्छा कहाँ हो पाता। गुरु जी निकाल लेते हैं हमको हर जगह से, हर दुख से, हर संकट से, छोटे में कटवा देते हैं। संकट कोई आता है वो दिखाई भी देता है गुरु जी ने काटा है। जैसे कि कभी
गेट पे चूहा मरा मिलता है, कभी वो तितली जैसे पक्षी की आता है वो मर जाता है, कोई मधुमक्खी मरी मिलती है। तो ये लगता है गुरुजी संकट काट रहे हैं। हमें तब दिखता है जब किसी को देखते हैं जैसे चूहा मरा, कोई मधुमक्खी मरी पड़ी है। अब तो हमें ये दिखता है, पहले तो हमें ऐसे ही लगता था, झाड़ू से इधर उधर कर देते थे कीटों को, इनको, है ना। अब देखते हैं तो यही लगता है गुरुजी ने कोई संकट काटा होगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप तो मेरे गुरु जी हैं, आपसे मैं क्या कहूँ। आपने मुझे इतना दिया है, आपने हर बात को मेरे सर से हर बला को टाला है गुरु जी। आप इसी तरह मेरे बच्चों पे अपनी अमृत वर्षा बरसाते रहना। इनकी छत्र छाया में आप हो गुरु जी। आप ही मेरे बाबा हो, आप ही मेरे गौरा मैया, आप ही मेरे गुरुजी हो, आप ही मेरे भोलेनाथ हो, आप ही गणेश भगवान हो। गुरुजी, आज दिल थोड़ा चिंता में था गुरुजी। जो मैं फ्लोर बेचना चाह रही हूँ, उस फ्लोर को कोई अभी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो आता है देख के चला जाता है, मगर जो उसमें किराएदार रह रहे हैं गुरुजी, वो बहुत दुखी हैं। उस पे कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुजी। और गुरुजी, पता नहीं कैसे गुरुजी सीवर उसमें का खराब हो गया है गुरुजी। मिस्त्री कहता है 7,000 रुपये लूँगा। गुरुजी कुछ ऐसा करो ठीक हो जाए, अपनी कृपा दृष्टि दिखाओ गुरुजी, लाज रखो, ज़्यादा पैसा ना लगे, ठीक हो जाए गुरुजी। गुरुजी, आपसे एक और गुजारिश है, आप मुझे ना उसको बिकवा के ना कहीं मुझे नया घर ब्लेस कर दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। ऊपर वाली जो है बहुत झगड़ा हुआ है गुरुजी। फर्स्ट फ्लोर मेरा है, सेकंड उसका है। मैं नहीं रहना, मैं उसको रखना नहीं चाहती, फ्लोर को बेचना चाहती हूँ गुरुजी। आपसे मैंने पहले भी कहा था मेरे गुरुवर, अब भी कह रही हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान में रखें मेरे बाबा। मुझे अच्छी जगह ब्लेस कर दो कि मैं इस घर से उस घर में चली जाऊं मेरे बाबा। आपने कहा इस जिस घर में मैं रहती हूँ, इस घर में आत्मा का साया है। गुरु जी, आप उस आत्मा को देखो, आप समझाओ, मेरे बच्चों को ब्लेस करो। मेरे बच्चों पे, मेरी बहनों पे, मुझ पे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए उस आत्मा की वजह से। लाज रखना बाबा, उस आत्मा को आप देखो गुरुजी, आप अपनी कंट्रोल में लो बाबा। हम पे कोई करना ना पाए, मेरा बेटा बेटियों की रक्षा करो बाबा। लाज रखो मेरे मालिक, लाज रखो। आपसे बड़ा कोई नहीं है मेरे गुरुजी, आप ही मेरे सब कुछ है मेरे गुरुजी। आप ही मेरे मौला, आप ही मेरे बाबा, आप ही मेरे गुरुजी, आप ही मेरे सब कुछ है मेरे बाबा, मेरे परम पिता, मेरे परमेश्वर। बाबा रक्षा करना गुरुजी, रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना, लाज रखना बाबा। और गुरुजी मैं क्या कह सकती हूँ बाबा, मेरे आदमी का दिमाग ब्लेस करो, उसका दिमाग खोलो, वो अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपनी पत्नी के बारे में सोचे बाबा। बाबा पूरी जिंदगी
निकल गई गुरुजी, मगर अब अच्छा होएगा, अब अच्छा होएगा, अब अच्छा होएगा। मगर गुरुजी, उसकी माँ कहते हैं माँ होती है, मगर वो कैसी माँ है बाबा, आप देखो, वो अपने बच्चे पे करवा रही है, अपनी छोटी बहू से कह के, जो सेकंड वाली है बाबा, जिसका आदमी ऐसा ही है। गुरुजी आप देखो, मेरे गहने बेच के लगा है, आज उसकी पत्नी मुझे कितना कष्ट दे रही है, जो गरीब घर से आई, इतना दुख दे रही है। गुरुजी आप देखो, गुरुजी मैंने अर्जी लगाई थी आपसे, मुझे कुछ दिखा नहीं मेरे मालिका, मेरे गुरुजी, आप देखो गुरुजी, मेरी उसने इतनी बैंड बजाई है बाबा, ਤੁਹਾਡੇ हत्थे मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना प्यार, अपनी जिंदगी, अपने बच्चे, सब कुछ। मेरे लिए तो मेरे गुरु अप्पा ही सब कुछ है। गुरुजी, पता नहीं क्या बात है, मैंने सिरप भी लिया, दवाई भी ली, मगर मेरी खांसी जा रही नहीं है गुरुजी, और मेरे बाल बाबा जहाँ से झड़े हैं वहाँ पे आ रहे नहीं हैं। मेरी बड़ी टेंशन होती है गुरुजी, मेरे बाल गोल गुलाई से हट गए हैं, मेरे चिंता लगी रहती है कब वहाँ पे बाल आएंगे सर पे। मेरे गुरुजी, जब मैं बाहर जाती हूँ सीधी मांग करके उसको ढक देती हूँ, मेरे गुरुवर, मैंने जिंदगी में कभी सीधी मांग निकाली नहीं थी। मेरे मालिक, कृपा दृष्टि करो, मेरे बाल उग जाएं बाबा। मेरी बेटी के बालों में पूरी लट बन जा रही है बाबा, सारे बाल ज्वाइंट हो जा रहे हैं, जैसे उसको खोलो तो टूट रहे हैं बाबा। मेरी बेटी के, मेरी बहन के, मेरे बालों में लट बन जा रही है बाबा। मैं क्या करूं गुरुजी, मेरे घर विच आके तुसी ब्लेस करो, इस घर विच आप रहो आके बाबा, तुसी मेरे गुरु हो, मेरे भोलेनाथ हो, रक्षा करो बाबा, रक्षा करो, रक्षा करो। मेरा बेटा जो मुझसे दूर रहता है गुरुजी, उसे ब्लेस करो, उसके अंग संग रहो। मेरे बच्चों पे जो बुरी नज़र डाले, जो काली शक्ति मेरे बच्चों पे भेजे, पहले आप पकड़ लो गुरुजी, मेरे बच्चों पे कुछ ना चाहे, तुसी खड़े रहो मेरे बाबा। मेरे गुरुजी, आज मैसेज आ रहे थे उल्टे सीधे, तेरे बच्चे पे ये कराया जा रहा है, वो कराया जा रहा है। मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैंने कहा मैं अपने पापा से बात करूं, मेरे बच्चे को ब्लेस करो गुरुजी। और गुरुजी, आज मेरी बहन ने आपके सत्संग में देखा कि पहले गेट पे फिटकरी बांध दे काले कपड़े विच, तुझे धन की कमी नहीं होएगी। गुरुजी, मुझे आत्मा जो आपने कहा मेरे घर में रहती है, मुझे बहुत डर लगता है। मैं सारी चिंता आप भरोसे छोड़ देती हैं। मेरे बच्चों ने 4 लड़के को, लड़कियों को, बहनों को कुछ ना होए, आप ब्लेस करना, जो भी आत्मा है आप देखो। मेरे बाबा, मुझे क्या पता इस घर में क्या क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम बाबा, मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी, बहुत डर लगता है। मुझे कोई ऐसा घर ब्लेस कर देते गुरुजी कि हम इस घर को, बेशक कारोबार यहाँ पे रहता, मगर हम सुबह बेशक हम इस घर में आते जाते, मगर ना रात को गुरुजी हम उस घर में रहते, सुकून की नींद सोते। टेंशन बनी रहती है गुरुजी, टेंशन बनी रहती है बच्चों के बारे में सोच के, जब से मम्मी पापा गए, मेरी बहन की बेटी जब से गई,
मेरा दिल बैठा रहता है, अपने बच्चों के बारे में गलत सोचता है, बेटे बेटियों के बारे में। मेरे बाबा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, रक्षा करो, कवच बन के तुसी खड़े रहो। लाज रखो गुरु जी, लाज रखो। जो ब्लैक कपड़े में आपने बताया है वो गुरु जी अच्छा ही होएगा, फिटकरी घर के मेन गेट पे बांधने से। गुरु जी जो इस घर विच आत्मा है वो किसी ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਤੁਸੀਂ रक्षा करना मेरे बच्चों दी, मेरी बहन दी। तुसी रक्षा करना मेरे बाबा, रक्षा करना मैं बच। अभी संगत जी अभी हुक्म हुआ गुरपिता का, बेटी शुक्राना कर, सब काम छोड़कर पहले शुक्राना कर। तेरे पास मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं है शुक्राना करने के लिए। फिर से आदेश आया गुरपिता की, आने वाली खुशियों का इंतजार कर, तेरे सारे दुखों का अंत होने वाला है, अभी शुक्राना कर। तो संगत जी गुरपिता के आदेश से ही मैं यह शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी गुरुपिता, आपकी महिमा का जितना भी बखान करूँ उतना कम ही होगा। आपकी महिमा का बखान मैं हर श्वास में भी करूँ तो भी वो कम ही होगा मेरे बाबा, क्योंकि आपकी रहमत, आपकी महिमा, आपकी कृपा अपरंपार है मेरे गुरुपिता, अपरंपार है। गुरुपिता, आप हमेशा मुझे अपने कमल चरणों से लगाए रखना, हमेशा कमल चरणों से लगाए रखना। आप हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हो, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपिता। हर पल, हर क्षण, हर श्वास में कभी ना खत्म होने वाला अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। मेरे हृदय की गहराइयों से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा। जो निस्वार्थ भाव का प्रेम आप मुझे करते हैं, उसके आगे मुझे शुक्राना शब्द बहुत छोटा लगता है गुरुपिता, बहुत छोटा लगता है। मैं हर बार बोलती हूँ कि गुरुपिता कहाँ से लेकर आऊं वो शब्द, जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूं, शुक्राना कर सकूं। क्योंकि गुरुपिता जो रहमत, जो कृपा आप मुझ पर बरसाते हैं, उसके आगे मुझे शुक्राना शब्द बहुत छोटा लगता है, बहुत छोटा लगता है। मेरे बाबा, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना ख्याल रखने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है गुरुपिता। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है। संगत जी गुरुपिता मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि जो बातें मेरे मन में चल रही होती हैं वो भी गुरुपिता मुझे सत्संग के माध्यम से सुनवा देते हैं। जो बातें मैं मेरे शुक्राना सत्संग में नहीं बोल पाती हूँ, मेरे मन के अंदर चल रही होती हैं, वो बातें भी गुरुपिता मुझे सत्संग के थ्रू सुनवा देते हैं। इसके लिए गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी थोड़ी देर पहले संगत जी मैंने सत्संग सुना, गुरुपिता कह रहे हैं कि तेरी डोर मेरे हाथ में है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा, उसमें बिल्कुल मेरे से रिलेटेड सारी बातें थी जो बिल्कुल मेरे पे मैच हो रही थी। और हर बार गुरुपिता मुझे ऐसा ही सत्संग सुनवाते हैं जो मेरे लाइफ से रिलेटेड होती है। और शायद गुरुपिता ही मुझसे ये शुक्राना सत्संग इसलिए करवा रहे हैं, शायद किसी संगत को मेरे थ्रू कोई मैसेज देना चाहते होंगे। तो गुरुपिता ने मुझे बताया कि काढ़ा पी, दालचीनी का और अर्जुन की छाल का और लौंग का, इससे जो बंद नसें होती हैं वो खुल जाती हैं। एक ही काढ़ा पीने के लिए गुरुपिता ने मुझे बोला, और चीनी, चावल और चुगली से हमें बचना चाहिए। तो मैं मेरे बाबा को सॉरी बोल रही थी कि गुरुपिता बहुत कोशिश करती हूँ मैं मीठा खाने पर, लेकिन क्या करूँ, मीठा छूट ही नहीं पा रहा मेरा। प्लीज़ मेरे बाबा आप कंट्रोल करवाओ और मुझे माफ़ करो बाबा, मुझे माफ़ करो। क्योंकि संगत जी बचपन से ही मुझे मीठा खाने का बहुत शौक़ है,
लेकिन कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं कि मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। सच में मेरा वेट दोबारा से बढ़ गया संगत जी। तो गुरुपिता कहते हैं कि तू एक टाइम सलाद खा और एक टाइम रोटी खा। तो इस पर भी मैं कोशिश करूंगी गुरुपिता, कोशिश करूंगी। अपना शरीर ठीक रखना है तो ये करना ही पड़ेगा। जब मेरे गुरुपिता मेरे साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। गुरुपिता ने मुझे सब चिंताओं से मुक्त कर दिया है संगत जी। सारी चिंता गुरुपिता ने अपने आप ले रखी है और मैं आराम से जिंदगी जी रही हूँ। मैं तो धन्य हो गई मेरे बाबा को पाकर। ऐसे इतने अच्छे इतने प्यारे गुरुपिता मुझे मिले हैं जो हर टाइम हर पल मेरा ख्याल रखते हैं। बहुत खुश हूँ मैं मेरे गुरुपिता को पाकर, बहुत खुश हूँ। कई बार तो ऐसा एकदम से पीछे मुड़ के देखती हूँ, सोचती हूँ कि सच में मुझे मेरे गुरुपिता मिल गए। मुझे इतने प्यारे इतने अच्छे, जितने सुंदर मेरे बाबा हैं उतना ही सुंदर मेरे बाबा का मन है। बहुत केयरिंग, बहुत लविंग फादर है मेरे गुरुपिता, बहुत लविंग फादर है। मैं मेरे गुरुपिता का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। गुरुपिता आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। बहुत ख्याल रखते हैं मेरे बाबा, बहुत ख्याल रखते हैं। हर पल मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं और मुझे अपनी फ्रेगनेंस देते हैं। इसके लिए गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। संगत जी, गुरुपिता अभी कह रहे थे मेरे को कि बेटी खुश रहा कर और चिंता करनी छोड़ दे, क्योंकि तेरी डोर मेरे हाथ में है। और गुरुपिता ने मुझे सत्संग सुनाया मेरे कान से रिलेटेड भी, कि कान में मेरे को प्रॉब्लम रहती थी, अब वो भी मेरी ठीक है संगत जी। और बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम थी मेरी, वो भी ठीक है संगत जी। पहले एलर्जी भी बहुत ज़्यादा जोर देती थी, जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी मेरे को। अब बहुत ज़्यादा, बस गुरुपिता ने मुझे बोल दिया है कि मैं 90% कष्ट मैं खुद ले रहा हूँ और 10% ही तुम भुगत रही हो। तो गुरुपिता इतना मेरा कष्ट काटने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपिता। मैं दिन रात भी आपका शुक्राना करूँ तो वो कम ही होगा गुरुपिता, क्योंकि जो रहमत जो कृपा आप मुझ पर बरसाते हैं उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ गुरुपिता। उसे मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरे बाबा मेरे गुरुपिता मुझे कितना प्यार देते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। गुरुपिता आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो गुरुपिता, आप बहुत प्यारे हो गुरुपिता। हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना, हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना, मुझे अपनी रजा में राजी रखना गुरुपिता, अपनी रजा में राजी रखना। सबका कल्याण करना गुरुपिता, सबका कल्याण करना। और संगत जी, गुरुपिता हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हर पलंग संग सहाय रहते हैं, तो हमें भी गुरुपिता का ख्याल रखना चाहिए मेरे बाबा के लिए। कोई भी टाइम मिले, आप 10 15 20 मिनट या फिर जितना भी टाइम मिले, आप उसमें गुरुपिता का सुखमणि साहिब पाठ और जपजी साहिब का पाठ और गुरु मंत्र जरूर करें आप। शायद गुरुपिता ही मुझसे यह बुलवा रहे हैं। ये पाठ करना हमें बहुत ज़रूरी है। जब इतने सारे कष्ट गुरुपिता हमारे शरीर के खुद के ऊपर ले लेते हैं, तो गुरुपिता का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। मेरे बाबा हमारा हर पल ख्याल रखते हैं, तो मेरे बाबा का भी हमें हमेशा नाम सिमरण करते रहना चाहिए, हमेशा हमेशा। गुरुपिता आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं, आप अपना भी ख्याल रखना मेरे बाबा, अपना भी ख्याल रखना गुरुपिता। मैं सिर्फ जो प्रेम आप मुझसे जैसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, वैसे ही आपकी ये पागल मूर्ख बेटी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। बाबा मुझे बस आपकी ब्लेसिंग चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सांसारिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है गुरुपिता, मुझे सिर्फ आपसे प्रेम है गुरुपिता।
आपसे प्रेम है। बस आप हमेशा साथ रहना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना बाबा, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना। बहुत खुश हूँ आपको पाकर। हमेशा साथ रहना गुरुपिता। जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो जाए तो आपकी बेटी को माफ कर देना गुरुपिता, क्योंकि मैं बहुत मूर्ख नादान हूँ गुरुपिता। मैं बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है गुरुपिता, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। बस मैं आपको बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ बाबा, दिल की गहराइयों से प्रेम करती हूँ, सच्ची आत्मा से आपको प्रेम करती हूँ गुरुपिता। मेरे मन मंदिर में आप हो गुरुपिता। गुरुपिता मेरा शुक्राना स्वीकार करना, आप स्वीकार करना गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से आपके कमल चरणों में स्वीकार करना गुरुपिता, स्वीकार करना। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आपकी नादान बेटी को माफ कर देना गुरुपिता, माफ कर देना।